Hello and assalamu alaikum to everyone. This is Sumaira Salamat, and I have brought a conversation, a very special conversation with Sahir on this very special day, Independence Day, and Happy Independence Day to you too. I'm not going to be in the camera, so you can only hear my voice. And let's go to Sahir and say salam to him. Assalamu alaikum. शाम कैसे हैं आप? गुड ठीक है ना? हाँ। नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? नाश्ता कर लिया तुम्हारा लाया हुआ मैंने व्हाट इज दैट हलवा. हलवा या हलवा And I have not made that. You know I'm bad at it. आई नो यू डन बट यू नो इट वाज गुड Okay, thank you. Thanks to my mom. She made it and she said कि ले लो. सुमेरा's mom thank you very much बहुत बहुत शुक्रिया So आपको पता है कि मुझे चने की दाल का हलवा बहुत पसंद है सो यू नो इट वाज रियली नाइस उन्हें नहीं पता, मुझे पता था. मैं लेके आई हूँ, दिया उन्होंने. ऑलराइट देन गेट ऑन विद द इंटरव्यू I've got some random questions and they include some Independence Day special questions even. So you will get a lot to speak in it. Okay. I would be speaking less and you would be speaking more. like always alright Okay. And I would really tell you if I stuck somewhere, so you're going to be the one who will handle this all. So let's start. The first question I have, it's all random. I'm not going to make it like एक formal interview नहीं होगा. It's just random. So मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना मतलब मैं यहाँ पर तुम्हारा वो लाया हुआ हलवा भी खा सकता हूँ and then I can have this coffee and tea together. आज से पहले मैंने कभी नहीं किया लेकिन राजा ने ये कर दिया है and you want to see राजा कम है मैं सी राजा को मैं दिखा दूँ आपको so you know कि राजा इधर ही है right there can you see राजा's there yeah this is राजा और इसने मुझे ये ग्रीन टी ला के दे दी है and then कॉफ़ी जब से मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया है I think कॉफ़ी की थोड़ी आदत पड़ने लगी है मुझे so I'm having coffee every morning anyway go please start. Okay, the first question I have is, you have often shown an interest in snakes. What exactly is it about these creatures that attracts you? हम सांपों के बारे में सवाल करके पहला ये मतलब शो शुरू कर रहे हैं हमारा इंटरव्यू जो सांपों से शुरू हो रहा है आई डोंट नो बचपन से मुझे स्नेक्स का बहुत शौक रहा है एंड आई एम इनटू स्नेक्स बिकॉज मुझे उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है आई लाइक यू नो कि वो किस तरह से मूव करते हैं उनकी मूवमेंट जो है स्नेक जो है वो बहुत अगर उसको समझा जाए उसकी साइकी को तो कोई ऐसा एनिमल नहीं है जो बहुत लोगों को परेशान करता है स्नेक उतना ही डरता है इंसान से जितना इंसान स्नेक से डरता है आई लाइक दैट प्लस इज अ वेरी क्लीन एनिमल वेरी क्लीन बिकॉज अपनी स्किन को शेड कर देता है एवरी 15-20 days and I don't know I just love snakes. Is there some part of yourself that you see reflected in them? No, not at all they're just they're just animals and no nothing. Okay. Nothing about snakes. Some attribute I was just No, saying. no, nothing. I just think that ये होता है ना लोगों को craze होता है. I think probably it started way back. मैं एक बॉल लेने एक झाड़ी में गया था हमारे क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ मैंने स्नेक्स का एक जोड़ा देखा था and मुझे अच्छा लगा वो. So I don't know. I wasn't scared. I was never scared of snakes. लेकिन I no attributes as such. No, nothing. Okay. The second question, if you could change history, what it would be the most you would like to change? History could be world history could be Pakistan history could be your history, could be I would like to change the history of Pakistan. East Pakistan जिस तरह से हमसे अलग हुआ. I would like to change that. अगर मैं उस वक्त हाकिम होता या हुक्मरान होता अगर मैं प्रेसिडेंट होता या मैं कुछ भी ऐसी पोजीशन में होता तो I would have never given up on East Pakistan. I would have tried to do my best to secure that land because I think still a part of me feels very sad when I go back in history and look at that because वो तारीख की एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम लोगों के माथे पे कलंक की तरह से है. ईस्ट पाकिस्तान जोग्राफिकली बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान का या पाकिस्तान का बनना उस वक्त उसकी तकसीम जो थी वो गलती थी ऐसा नहीं है. अगर इस वक्त हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान होता और वो पाकिस्तान का हिस्सा होता तो हम बहुत सारी जो धमकियाँ हमें मिलती हैं हिंदुस्तान से और उससे धमकियाँ हैं मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कहता हूँ और लोगों को बिल्कुल नहीं कहता. लोग तो बहुत अच्छे हैं लोगों से बहुत प्यार करते हैं मैं खुद इंडिया पाकिस्तान दोस्ती का बहुत हामी हूँ. हम उनसे बच सकते थे. जोग्राफिकली पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी थी कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे या बीच में हिंदुस्तान आता था बट स्टिल आई थिंक अगर हम कायद आज़म के बताए हुए उसूलों पर चलते तो हम ईस्ट पाकिस्तान को सिक्योर कर सकते थे. Okay.
Okay, the Independence Day is coming up, or it would rather be uploaded on the Independence Day or before that. Is it? I don't know yet. This is yet to decide. But the Independence Day is coming up. What do you think, as we as Pakistanis have the most we should be thankful of? I think Pakistan itself. Pakistan itself. We're never thankful of Pakistan. हम लोग कभी भी पाकिस्तान के लिए शुक्र अदा नहीं करते. हम लोग बातें बहुत करते हैं, नाम बहुत लेते हैं. Again, मैं I don't want to be bitter about it. लेकिन ये है कि अगर वाकई हम सही नज़र से देखें तो मेरे ख्याल में जितना शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान मिला, उतना शायद किसी को नहीं अदा करना चाहिए. बिकॉज ऑनेस्टली अगर हमारे पास ये मुल्क नहीं है तो हमारी पहचान क्या है? कोई भी पहचान नहीं. तो आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू आवर गॉड who has given us this greatest land of them all, which we call home. Okay. If you could shape the future, what would you make sure is it there in it and not there in it? Me running the country and not there, I don't know, not there. Couple of people in history, not there. In my history, not there. Yeah, but वो मैं आपको share नहीं कर सकता. लेकिन if I can shape the future, yes, I think I'll be running this country. Okay. What would be the first thing you would like to do? What would be the first thing you would do after you would be If I become, मैं जिस कमरे में बैठता हूँ वहाँ बहुत सारे सुराख हैं जिसमें से तार आए हुए हैं. मैं वो बंद करवा दूँगा ताकि ये आवाज़ें जो आप पीछे सुन रहे हैं ये नहीं आ सके. And then the first order of action would be, honestly, I think मैं parking spaces बनाऊँगा. जगह जगह लोगों को बोलूँगा. वो तालीम वालीम तो सब हमको पता ही है कि क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर तो सब आप काम करेंगे, एक दिन में तो नहीं होगा. लेकिन मैं रोबस्टिकली आई थिंक 5-6 लाख वर्कर्स जो हैं वो एक शहर में हायर करूँगा और बड़े बड़े प्लाजाज बनाऊँगा जहाँ पार्किंग हो सकती है, ताकि हमारी रोड्स जो हैं वो इतनी कुशादा रोड्स जो हैं उस पर एक्चुअली गाड़ी चल सके, वो आप रेंगे ना और आप टाइम बचा सकें, फ्यूल बचा सकें. बिकॉज गाड़ी अगर खड़ी होती है तो भी फ्यूल जलता है. बहुत सारे उसके इम्प्लिकेशंस हैं. बिकॉज आई एम एन इंजीनियर और मेरा जो दूसरा माइनर था वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम बचा सकते हैं. बहुत सारे पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को सिक्योर कर सकते हैं अगर हम उसको इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना शुरू कर दें. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड डू. दैट्स व्हाट आई वुड डू. अगर मैं होता तो मेरा पहला ऑर्डर ऑफ एक्शन जो होता वो ये होता कि बड़े बड़े पार्किंग स्पेसेस बना दें पूरे अर्बन सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर आप अपनी, और मोटरसाइकिल सवारों को मैं ये कहता कि उनकी एक लेन है, उस लेन को वो क्रॉस नहीं कर सकते. देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. अगर आप उस लेन को क्रॉस नहीं करेंगे तो आपकी अपनी भी सेफ्टी है. अगर आप उस लेन को क्रॉस करेंगे यूड बी फाइंड. चारों तरफ कैमरे इंस्टॉल करवाता और पुलिस की तनख्वाहें बहुत बढ़ा देता और ट्रैफिक पुलिस की तनख्वाहें बहुत बढ़ा देता. देखिए हम टैक्स पे करते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं. अगर honestly if someone wants to talk to me, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हो चाहे वो कहीं से भी हो, they want to talk to me and ask me to prepare a plan. It's not rocket science to run this country. The problem is कि I think हम लोग शायद इतने honest नहीं हैं कि हम अपने मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं. We're not honest. हम बोलते बहुत हैं हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं and everything else, लेकिन एक्चुअली हम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं. हम किसी से प्यार नहीं करते. हमें चूँकि दे दिया गया है ये मुल्क, इसलिए हमारी कौमियत जो है वो जागती है 14 अगस्त वाले दिन, 25 दिसंबर वाले दिन, 23 मार्च वाले दिन हम लोग पाकिस्तानी अचानक से बन जाते हैं. बट रेस्ट ऑफ द डेज हम इसी मुल्क में रहने के बावजूद भी शहरों से होते हैं, गांव से होते हैं, सूबों से होते हैं, बट पाकिस्तान से नहीं होते. सो आई थिंक मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन कौन लोग इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे, या एवर गेट अ चांस टू गेट इनटू पॉलिटिक्स और नॉट. बट इफ एनीवन वांट्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं तो हमारा थिंक टैंक बन सकता है. मैं 50-60 ऐसे लोग जमा कर सकता हूँ जो एक प्रॉपर प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं, करंट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, प्रॉपर प्लान दे सकते हैं कि सर इस तरह से ये है, इसको इस तरह से आप रन कर लें. पाकिस्तान को चलाना मुश्किल नहीं है अगर हम चलाना चाहें तो. You have to be focused. फोकस्ड एंड ऑनेस्ट. देखिए आप फोकस हो ही नहीं सकते अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं. इफ़ यू आर ऑनेस्ट देन ओनली यू कैन बी फोकस्ड. अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो फिर आप फोकस कैसे होंगे? आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. वो दिल से जो बात निकलती है, असर यहाँ से निकलनी चाहिए बात. पाकिस्तान चलाना मुश्किल नहीं है. आई मीन क्या है, एक मुल्क है वो लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज और ह्यूमन पोटेंशियल हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है. तो उस ह्यूमन पोटेंशियल को कौन एक्सप्लोर कर रहा है? उस ह्यूमन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ना. Agreed. Do you think that bringing peace war is necessary? I didn't understand the question. Peace war, what do you mean? Peace war as in
you know, there are cold wars and there have been plans and there are plans to break up nations and make up, and you know, do you think bringing peace to this whole situation is necessary? Yeah, but can you honestly say कि ये कभी हो सकता है, कभी पॉसिबल है? 9 आइस एजेस इस दुनिया ने देखी हैं जो रिकॉर्ड है। बिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर चुके हैं इस कायनात को बने हुए। कौमें आई हैं, कौमें डिस्ट्रॉय होती रही हैं, कौमों के ख़िलाफ़ सबटाज भी हुआ है। वो कौमें सस्टेन करती हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं, मैनेज करती हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को जानती हैं। बड़ी बड़ी तहजीबें हैं, इंडस वैली की तहजीब है जिसमें हम रहते हैं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान उसमें शामिल है। हम लोग बहुत ओल्डेस्ट जो है वो तहजीबों में से एक तहजीब है। इजिप्ट की तहजीब है, इथियोपिया की तहजीब है, सोमालिया की तहजीब है, दैन यू नो स्कैंडिनेविया के चंद पोर्शन पार्ट्स जो हैं उनकी तहजीबें हैं, चाइना की तहजीब है। तो ये तमाम की तमाम तहजीबें हैं, लेकिन मुल्क बनते रहे हैं और टूटते रहे हैं। मुल्कों के ख़िलाफ़ साजिश होती रही। आप ह्यूमन नेचर को नहीं बदल सकते। हाँ, अपने आप को आप कैसे सस्टेन कर सकते हैं इसमें, जब आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें, झूठ ना बोलें, खुद से झूठ ना बोलें और अपनी नेशन के बारे में सोचें। देखिए, आप अगर दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आपके बारे में किसी ने पहले सोचा होगा, इसकी बुनियाद डालें। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, तो आने वाले लोग भी अपने बारे में सोचेंगे, हमसे पहले लोग भी अपने बारे में सोचेंगे, तो हम कहीं जाते नहीं है, वही स्टैग्नेंट हो जाते हैं। अगर हम ये सोच लें, अगर हम ये आदत, इसको कहते हैं पे इट फॉरवर्ड, पे इट फॉरवर्ड। अगर हम ये आदत डाल लें कि मैं आपके बारे में सोचूंगा, ठीक है ना, तो उससे होगा क्या कि मैं आपके बारे में सोचूंगा तो मेरे बारे में किसी और ने सोचा होगा। इस तरह से ये एक सर्कल जो है, साइकिल जो है वो चलता रहेगा। एक मशीन जो है वो बन जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड विल प्रोग्रेस। और आहिस्ता आहिस्ता हम दुनिया के अंदर सस्टेन करने लगेंगे, लेकिन और कम्पीट करने लगेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है तो मुझे खासी परेशानी है, बहुत परेशानी है। आई मीन अ लॉट ऑफ टाइम्स यस, मैं बहुत ज़्यादा होप की बातें करता हूँ, बहुत ज़्यादा ये बात करता हूँ कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद अस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद अस, लेकिन देयर इज़ अ लॉट रॉन्ग अराउंड अस, देयर इज़ अ लॉट रॉन्ग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, एंड हमको समझना पड़ेगा, हमको डिफरेंसेस भूलने पड़ेंगे, हमको ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना ख़त्म करना पड़ेगा। हमको मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अगर हमने मुल्की मफाद को मद्देनज़र नहीं रखा तो आई डोंट नो हम हिस्ट्री लिखते लिखते खुद हिस्ट्री ना हो जाए। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। एंड देखिए, कोई नहीं सोच सकता था कि हिंदुस्तान टूटेगा या हिंदुस्तान बट जाएगा हिस्सों के अंदर, लेकिन वो हुआ। हमारे यहाँ तहरीकें चल रही हैं, हमारे यहाँ लोग, ये कौन चला रहा है, हमें समझना पड़ेगा। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है, ये सवाल हमें अपने आप से करना पड़ेगा। हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? अगर हम वाकई समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो फिर इन सारी तहरीकों का जवाब सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। इफ यू आर अ पाकिस्तानी, देन दैट्स द ओनली आइडेंटिटी यू हैव। उसके अलावा कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं। अपने आप को शहर में मत बांटिए, सूबों में मत बांटिए, गली में मत बांटिए, यू नो किसी और पंचायत में मत पड़े। द ओनली थिंग यू हैव, द ओनली आइडेंटिटी यू हैव इज दैट ग्रीन फ्लैग, ग्रीन एंड वाइट फ्लैग, एंड दैट्स इट। वो चांद सितारा आपका सब कुछ है, वही आपका कफन है, वही आपका लिबास है, वही आपकी सुबह है, वही आपकी शाम है, वही सब कुछ है, वही आपका तराना है, वही आपकी जान है, वही आपकी पहचान है। अगर आप उसको नहीं मान सकते और आप अपने झंडे बना लेते हैं, आपकी पार्टी का झंडा पाकिस्तान के झंडे से बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। Agree. The world has been a lot of movements, from freedom of slave, rights of black, freedom of speech, feminism. Is there anything which you think is wrong, which movement is wrong, or you think that the world would have been a better place without it? Oh, all of them. All of them. We would have been much better if life was simpler. Much better. I mean, मैं हमेशा ये कहता हूँ, that's just a joke. I mean, not everything was bad. Few things were required, but at the same time, I think ज़िंदगी बहुत आसान थी जब वो बहुत सिंपल थी. हम जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे लाइफ को, ये उतनी कॉम्प्लिकेट होती जाती है. फॉर इंस्टेंस रिलीजन ले लीजिए. मेरा रिलीजन इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ, और मेरा रिलीजन शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा सादा, आसान और ख़ूबसूरत रिलीजन है. मैं सबसे ज़्यादा टॉलरेट करता हूँ. मेरे रिलीजन में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और रिलीजन के किसी भी फ़र्द को टॉलरेट नहीं करूँगा या उसको डिस्क्रिमिनेट करूँगा, ऐसा नहीं है. मेरे रिलीजन में
मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि